Hello student, today we are going to continue our chapter that is linear equation in two variables. In the previous video we have discussed the algebraic method to solve the linear equation in two variables. In that we have discussed three types of method, that is first one is substitution method, second is elimination method, and third is cross multiplication method, which has been removed from your syllabus. That the third topic, that is third method, cross multiplication method, है ना. So today we are going to do few problems on substitution methods. After that we will discuss the elimination method, how we can solve using elimination methods, है ना. So we have a question. If we have the question based on root 1, see, solve for x and y, solve for x and y, root 2x minus root 3y is equal to 0. Okay, root 5x plus root 2y is equal to 0. See, we have pair of linear equation in two variable. These questions we have to solve by substitution method. How we can solve, I have told you. First of all, make the equation, that is equation 1 and 2. Using equation 1 and 2 you can find the equation third, the value of x and y, है ना. मतलब कि आप इक्वेशन 1 को आगे बढ़ के मैंने पकड़ के आगे बढ़े या इक्वेशन 2 को, ठीक है ना. तो किसी एक इक्वेशन को हम ये करते हैं, टेक करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को रूट 2x इज इक्वल टू रूट 3y. फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू रूट 3y डिवाइडेड बाय रूट 2, and this is your equation 3. Putting value of x, देखो इक्वेशन 1 से हम x का वैल्यू निकालें ना, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालें तो हम लोग इक्वेशन 3 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, या पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक. पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में x का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो रूट 5x है, तो x के जगह पर लिख देंगे रूट 3 बाई रूट 2y. ओके, एंड प्लस रूट 2y है इज इक्वल टू 0, है ना. फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y. सो हाउ यू कैन कैलकुलेट रूट 15, okay, by root 2y plus root 2y is equal to 0. Now taking the LCM, that is root 2, okay, this become root 15y and that become 2y, okay, is equal to 0, है ना. From here you can write, see, 2y and root 15y, you can write y will be common, that is root 15 plus 2 is equal to 0. तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0. y का वैल्यू कितना आ गया, 0. तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट 3 रूट 2
into 0, it also become 0. If you put 0 0, it will satisfy the equation, है ना। तो x का वैल्यू भी 0 आया, y का भी वैल्यू कितना आया 0, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, आप बना सकते हैं उसको। See, we have another type of question based on substitution method. How we can solve this question? See, first of all, we know the general form of linear equation in two variable, that is ax plus by minus c is equal to 0 और plus c is equal to 0. This is your general form. तो इस फॉर्म में पहले हमको लाना हो, है ना। क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में एक्स वाई दिया हुआ है और इक्वल टू डिनोमिनेटर में एक्स वाई दिया हुआ है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो सिंपली व्हाट वी कैन डू, यू कैन मल्टीप्लाई थ्रू आउट एक्स, मतलब हमको एक्स वाई रिमूव करना है। क्या करना है? एक्स वाई रिमूव करना है। तो एक्स वाई रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। एक वो प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस एक्स वाई एलसीएम ले सकते हैं और फिर काट सकते हैं। तो इक्वेशन 1 को अगर हम ये करें, मॉडिफाई करते हैं इक्वेशन 1 को, तो टेकिंग एलसीएम दैट इज एक्स वाई हो गया, तो ये 2y हो गया प्लस 3x हो गया इज इक्वल टू 9/xy। यहाँ से एक्स वाई कट जाएगा, तो 2y प्लस 3x is equal to 9, and this is equation 3rd. From equation 2 you will get, taking LCM that is xy, it becomes 4y plus 9y is equal to 21/xy, है ना। xy कट जाएगा, तो ये बचेगा 4y plus 9y is equal to 21. This is equation 4. तो equation 3 and equation 4 are in the general form of linear equation in two variable. So from here equation 3 and 4 you can solve further to find the value of x and y. So plus 3x is equal to 9 and 4y plus 9x is equal to 21. Here should be x, है ना। तो ये थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो टेकिंग इक्वेशन 1 वी गेट y इज इक्वल टू 9 माइनस 3x/2, ठीक है। इक्वेशन 5 पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, ठीक। तो 4y 9 माइनस 3x/2 प्लस 9x इज इक्वल टू 21, 2 टाइम्स 18 माइनस 6x प्लस 9x इज इक्वल टू 21, 3x इज इक्वल टू 21 माइनस 18, 3x इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू आ गया 1, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6/2 इज इक्वल टू 3, ठीक। तो ये रहा x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा। अब चलते हैं, मूव करते हैं एलिमिनेशन मेथड, कैसे सॉल्व होगा एलिमिनेशन मेथड से। से वी हैव एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट करना होता है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, x नहीं तो y को, है ना। किसी एक वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन को पहले समझ लेते हैं। क्या होता है, अगर इक्वेशन मेरा इस टाइप का और एक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू डी, ठीक। तो
तो इस कंडीशन में देखोगे कि जो कोफिशिएंट हमारा है x का y का, दोनों इक्वेशन में पॉजिटिव साइन के साथ है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर डिफरेंट साइन होगा, देखो सेम साइन है, क्या है? सेम साइन। सेम साइन में हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर डिफरेंट साइन होगा, क्या होगा? डिफरेंट साइन, है ना, तो हम लोग इक्वेशन को क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जैसे x माइनस वाई और x प्लस वाई है इक्वल टू सी इक्वल टू डी, इस टाइप का रहेगा। देखो डिफरेंट साइन है ना, एक प्लस प्लस है, माइनस प्लस है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू सी इक्वल टू डी, इस टाइप का रहेगा। ये भी डिफरेंट साइन है। तो इस कंडीशन में हम लोग एडिशन करते हैं और इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये एक रूल है। ये चलो, ये रूल तो हम समझ गए। अब आगे बढ़ते और क्या कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जो बनाए थे रूट वाला, रूट 5x, उसी को लेते हैं, उसी को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन था रूट 2x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन ये था, एक इक्वेशन ये था। दूसरा था रूट 5x एंड प्लस रूट 2y इज इक्वल टू 0। देखो ये हमारे पास दो इक्वेशन है। इसको हमको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया आज के वीडियो में, तो वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व किए थे और x y का वैल्यू 0 0 आया था। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहला यहाँ साइन देखते हैं। तो साइन देख रहे हैं कि डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइन के लिए हम लोग क्या करते हैं? एडिशन करते हैं इक्वेशन का, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि कोफिशिएंट सेम है कि नहीं है। किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब तुमको एलिमिनेट करने के लिए हम x को भी कर सकते हैं, लेकिन x का क्या है? साइन सेम है। x का साइन सेम है, तो सेम के लिए हम क्या कहे हैं? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करने से अच्छा हम लोग एडिशन करते हैं। क्या करते हैं? एडिशन। तो एडिशन करने के लिए डिफरेंट साइन वाला को पकड़ते हैं। तो y वेरिएबल में डिफरेंट साइन है, तो y वेरिएबल में डिफरेंट साइन है, तो रूट 3 और रूट 2 है। क्या है? रूट 3 एंड रूट 2। तो रूट 3 एंड रूट 2 आर द सेम कोफिशिएंट? नो। तो सेम करने के लिए हम लोग क्या चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3 से। देखो रूट 2 से करने से ऊपर इक्वेशन 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x माइनस रूट 6y इज इक्वल टू 0। और जो मल्टीप्लाई होगा LHS और RHS दोनों में होगा। इक्वेशन 3 हो गया। रूट 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा रूट 15x, ठीक, और ये हो जाएगा प्लस रूट 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन 4। दोनों को हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट साइन वाला को, एक y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन के लिए क्या बताएं? एडिशन। तो एडिशन में हम लोग क्या करेंगे? रूट 2x प्लस रूट 15y और ये एलिमिनेट हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सॉरी y नहीं है, x है, ठीक। तो ये x कॉमन, तो 2 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 0। अब इस x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चारों इक्वेशन में किसी में, ठीक है। तो यू विल गेट द y वैल्यू। y का भी वैल्यू क्या आ गया? 0, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ एलिमिनेशन मेथड पे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इज इक्वल टू 75 एंड अनदर इज 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। सी
we have to eliminate the variable, the single variable, कोई भी x या y। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं साइन। तो साइन x का दोनों क्या है, दोनों इक्वेशन में पॉजिटिव है। y का दोनों में क्या है, निगेटिव, दोनों में एक पॉजिटिव है दूसरा में निगेटिव है। तो डिफरेंट साइन वाला को हम पकड़ के एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ये भी होना चाहिए सेम और ये भी होना चाहिए सेम, है ना। तो यहाँ पे क्या है 3y है और ये कितना है -5y है। तो सेम करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसका जो कोफिशिएंट 5 है उससे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका कोफिशिएंट 3 है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया 50x प्लस 15y इज इक्वल टू 375। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18x, ये हो जाएगा -15y और ये हो जाएगा 33। अब हम क्या बोले हैं, एडिशन करने के लिए। एडिशन जब भी करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट। ठीक, तो कैंसिल हो गया। तो 50 और 18 68x बराबर किसके हो गया 80408। तो x का वैल्यू 408/68। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो 6 टाइम्स, कितने बार में x का वैल्यू 6 आ गया। इस x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो 10x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है 75 है। तो 10 इंटू 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 75। तो ये 60 प्लस 3y इज इक्वल टू 75, 3y इज इक्वल टू 15। तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक है, तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 5। तो इसी तरह एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन आपको रहेगा, आप बना सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट साइन का रहेगा तो हम लोग एडिशन करेंगे, सेम साइन का रहेगा तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन में याद रखना इक्वेशन का साइन बदलेगा, इसलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू क्लास, एंड डू योर वर्क ऑनेस्टली। हैव अ नाइस डे।